Good morning, students. So, students, in today's class, we are going to discuss page number 22 and 23 of your book. Let's start with page number 22, chapter name Indian Scientists and Inventions. Let's start. Indian Scientists and Inventions. Read the clues and answer the following questions. यहाँ पे हमें साइंटिस्ट के बारे में कुछ क्लूज दिए गए हैं, उनको रीड करके हमें उनके नेम बताने हैं, उनका नाम बताना है. ओके, सो फर्स्ट इज ही केम अप विद द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स फॉर विच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1983. ही इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ चंद्रशेखर लिमिट. इन्होंने मैथमेटिकल थ्योरी दी थी ब्लैक होल्स के बारे में और इनको उनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में 1983 के अंदर. ही इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ चंद्रशेखर लिमिट. वो किस चीज के लिए फेमस है? अपनी डिस्कवरी चंद्रशेखर लिमिट के लिए फेमस है. ओके, सो आंसर इज एस चंद्रशेखर. ओके, एस चंद्रशेखर. नेक्स्ट, he was an Indian physicist whose work contributed substantially to the field of light scattering, which earned him the 1913 Nobel Prize in Physics. He was the first Asian to receive a Nobel Prize in the field of physics. He was an Indian physicist. वो एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने लाइट स्कैटरिंग के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में 1930 में. ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. वो पहले एशियन थे जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था. सो द आंसर इज सीवी रमन. सीवी रमन. ओके, नेक्स्ट इज ही इज एन इंडियन बोर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट. He received a Nobel Prize in 2009 for his work on the structure and function of ribosomes. ये एक इंडियन बोर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट हैं. इनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला है फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. सो हु इज दिस? दिस इज वेंकटरमन राधाकृष्णन. वेंकटरमन राधाकृष्णन. ओके, next, he was a plant physiologist and physicist who invented highly sensitive instrument for recording minute response by living organism to external factors. This invention helped him in drawing similarities between animal and plant tissues. ये एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया है जो छोटे से छोटे रिस्पॉन्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल छोटे छोटे रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो उन रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करता है वो इंस्ट्रूमेंट. दिस इन्वेंशन हेल्प्ड हिम इन ड्राइंग सिमिलरिटीज बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज. और इस इन्वेंशन से इस इन्वेंशन ने इनकी काफी मदद की सिमिलरिटीज को पता करने में एनिमल और प्लांट टिश्यूज में. ओके, सो हु इज दिस? वी आर टॉकिंग अबाउट जेसी बॉस. जेसी बॉस. ओके, next, can you identify these famous Indian scientists? He is known as the father of Indian space program. Father of Indian space program. It's very important. So who is the father of Indian space program? The answer is Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai was the father of Indian space program. Okay, next is he is known as the father of India's nuclear program. So here question arises, who is the father of India's nuclear program? The answer is Homi J. Bhabha. Homi Jahangir Bhabha. Okay. Next and the last is most important. He is known as the missile man of India. He was very famous missile man of India. So the answer is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was the missile man of India. So students, here we finish page number 22, chapter name Indian Scientist and Invention. It's very important chapter. So read it very carefully and learn the important points in this chapter. Okay, let's start page number 23, chapter name Forest Quest. Forest Quest. Read the clues given about different kind of forest and choose the correct answer from the help box. First, these forests are dominated by pine and spruce trees. These forests have prolonged winters and get rainfall between 10 and 20 inches. ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर पाइन और स्प्रूस के जो ट्रीज हैं वो ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स यानी विंटर सर्दियाँ जो है वो लंबी होती हैं और रेनफॉल जो है इन फॉरेस्ट में 10 to 20 इंचेस होती है. सो द आंसर इज बोरियल फॉरेस्ट. BOREAL बोरियल फॉरेस्ट.
Okay, next is this forest in California provides a diverse range of habitats having 400 species of endemic and 200 species of rare vascular plants. Unfortunately, it is threatened by grazing, fire, urbanization, logging and mining interest. ये फॉरेस्ट जो है कैलिफोर्निया के अंदर है और इनके अंदर एक डाइवर्स रेंज, काफ़ी डाइवर्स रेंज में हैबिटेट्स जो है वो पाए जाते हैं. अप्रोक्स 400 स्पीसीज जो है वो एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं. स्थानिक जो स्पीसीज है यानी कि उस स्थान पर जो पाई जाती है 400 टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो हैं वो मिलती हैं. एंड 200 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर, रेयरली वस्कुलर प्लांट्स की 200 स्पीसीज जो है वो रेयर वस्कुलर प्लांट्स की मिलती है, पाई जाती हैं. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ थ्रेटन्ड बाय ग्रेजिंग, फायर, अर्बनाइजेशन, माइनिंग इंटरेस्ट. लेकिन दुर्भाग्य से इन जंगलों को, इन फॉरेस्ट को खतरा है ग्रेजिंग से, फायर से, अर्बनाइजेशन से या माइनिंग जो हो रही है उनसे इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है. सो द आंसर इज सियरा नेवाडा, SIERRA, सियरा नेवाडा. ओके, नेक्स्ट इज these forests occur in the hot, wet region around the equator. They are filled with trees that stay green all year round. It has been estimated that more than half of the world's plant and animal species live in this forest. These forests occur in hot, wet region around the equator. Equator is भूमध्य रेखा. So ये हमारे जो फॉरेस्ट हैं ये भूमध्य रेखा के नज़दीक हॉट और वेट रीजन में पाए जाते हैं. They are filled with trees that stay green all year round. और यहाँ पर ज़्यादातर जो पेड़, जो ट्रीज होते हैं वो पूरे साल ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज लिव इन दिस फॉरेस्ट. और ये एस्टिमेट लगाया जाता है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि दुनिया के आधे जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नेक्स्ट, दिस फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ये जो फॉरेस्ट है ये दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है उसके अंदर पाए जाते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है. जैसा कि हम जानते हैं सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है उसके अंदर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. द नेम इज सेड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड सुंदरी. और ये नाम जो है ये एक वर्ड से मिला है जिसका सुंदरी वर्ड से मिला है. ए रेफरेंस टू द लार्ज काइंड ऑफ सुंदरी ट्रीज दैट ग्रो देयर. क्योंकि इन्हीं जंगलों के अंदर सुंदरी नाम का एक ट्री है, एक पेड़ है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ ए टाइगर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट. ये एक साइट है टाइगर्स को प्रिजर्व करने की. ओके, सो द नेम ऑफ दिस फॉरेस्ट इज सुंदरबन फॉरेस्ट. ओके, नेक्स्ट, दिस फेमस रेन फॉरेस्ट इन थाईलैंड इज सेड टू बी ओवर 160 मिलियन ईयर ओल्ड. ये फेमस रेन फॉरेस्ट है जो थाईलैंड के अंदर है और ऐसा माना जाता है कि ये अप्रोक्स 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ये जो है वो 160 मिलियन साल पुराना फॉरेस्ट है. सो द आंसर इज खाओ शौक, KHAO, खाओ SOK, शौक, खाओ शौक. ओके, नेक्स्ट इज द लीजेंडरी होम ऑफ रॉबिन हुड. दिस फॉरेस्ट इन इंग्लैंड इज फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड नियरली 1000-year-old एंशियंट oak tree. The legendary home of Robin Hood. The legendary home of Robin Hood. Legendary, पौराणिक या काल्पनिक घटनाओं में ऐसा माना जाता है कि ये रॉबिन हुड का घर है. दिस फॉरेस्ट इन इंग्लैंड इज फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ. ये जो फॉरेस्ट है इंग्लैंड के अंदर ये इसकी वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है. एंड नियरली 1000-year-old एंशियंट ओक ट्री. और अप्रोक्स 1000-year-old, 1000 साल पुराने जो प्राचीन ओक ट्रीज हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फेमस है. सो द आंसर इज शेरवुड फॉरेस्ट, SHERWOOD, शेरवुड फॉरेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज फाउंड इन कूल रेनी एरियाज. दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड ग्रो न्यू वंस इन स्प्रिंग. ये जो फॉरेस्ट है ये कूल रेनी एरियाज में पाए जाते हैं. दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स. और इन फॉरेस्ट की में जो ट्रीज होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो ऑटम सीजन में जो है वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, और जो नई पत्तियां हैं वो स्प्रिंग सीजन में फिर से आ जाती हैं. सो द आंसर इज डेसिडियस फॉरेस्ट, DECIDUOUS, deciduous forest. Okay, next and the last is these forests are found in areas that have moderate to heavy annual rainfall and long winters. ये जो फॉरेस्ट है ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां मॉडरेट से हैवी रेनफॉल जो है वो
पूरे साल होती है, और विंटर्स यानी सर्दियां जो है वो लंबी होती हैं, लॉन्ग विंटर्स. दे आर सिमिलर इन शेप एंड हाइट and often form a nearly uniform stand with a layer of low shrubs or herbs below. Pines, spruces, firs and larches are the dominant trees found here. यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो शेप हाइट में अप्रोक्स ज़्यादातर ट्रीज जो है वो सिमिलर होते हैं. और यहाँ पर कौन से ट्रीज ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं? पाइन्स, स्प्रूसेस, फर्स एंड लार्चेज, ये कुछ ट्रीज हैं जो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं. So we are talking about coniferous forest. CONIFEROUS, coniferous forest. Okay. Next tidbits. The floor of a coniferous forest is usually covered with a thick layer of dead leaves because they take a long time to rot in the cold, dark condition. जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जो फ्लोर है या जो सतह है, जंगलों की नीचे की जो जमीन है, वो यूजुअली कवर होती है, ज़्यादातर कवर्ड होती है पत्तियों से, डेड लीव्स से, जो पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाती हैं. बिकॉज, क्योंकि दे टेक ए लॉन्ग टाइम टू रॉट इन द कोल्ड डार्क कंडीशन, क्योंकि इन पत्तियों को गलने में या इन पत्तियों को डिस्ट्रॉय होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो ठंडी और डार्क कंडीशंस होती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश पेज नंबर 23. इन दिस क्लास और इन दिस वीडियो वी डिस्कस पेज नंबर 22 and 23 of your book. Chapter's name Indian Scientist and Invention and Forest Quest. So you have to read it very carefully and learn also. Okay, bye bye, take care.